So join your hands and start chanting of Omkar thrice. Sairam to one and all present over here, and I request you all to open your camera for important discussion. Open your camera. Agrima, are you there? Yes, sir. Vyom, are you there? Vyom Nikra? Vyom just left the meeting. How many of you can open the camera? Anumega, Aditya, Catherine, all of you open your camera. This is the last time I am asking you to all open your camera. Okay, you don't want to open? I can see only Agrima here. All of you know that today is 31st of October, 31 October 2020. And this day, from 2014, we celebrate it as a National Unity Day. इसका मतलब होता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज 31 ऑफ अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। उन्होंने आजादी के बाद 700 से ज्यादा अलग अलग रियासतों को एक करके एक नए भारत की कल्पना की थी, जो कि आज हमारे सामने है। अब मैं जो आपसे बोल रहा हूं कि हमें अभी प्लेज लेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ। यह प्लेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। आप सभी लोग अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं। पहले हिंदी की शपथ पढ़ेगी अग्रिमा मिश्रा और इंग्लिश की शपथ पढ़ेंगे व्योम निखरा। व्योम, आर यू देयर? यस सर। अग्रिमा, आर यू देयर? यस सर। तो अपना कैमरा ओपन कर लीजिए और सभी लोग अपना माइक भी ओपन कर लीजिए। आप लोग माइक ओपन करेंगे तभी आपकी आवाज आएगी। और पहले अग्रिमा बोलेगी, फिर आप उसको रिवाइज करेंगे। अग्रिमा, अपना माइक कैमरा भी ऑन कर लीजिए। सर कर लिया। अग्रिमा? यस सर, कर लिया। ओके, नाउ यू स्टार्ट अग्रिमा। मैं अग्रिमा मिश्रा सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ। एक मिनट, आपको यहाँ अग्रिमा मिश्रा नहीं बोलना है। मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ वैसे पढ़ना है और आप सारे बच्चे रिपीट करेंगे, ठीक है? और उसको छोटे छोटे सेंटेंस में पढ़ना है। यस सर। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगी। मैं राष्ट्र की एकता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए करूंगा।
और अपने साथी देशवासियों को एक संदेश को फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगी। और और अपने अपने साथी देशवासियों के बीच इस को संदेश को फैलाने फैलाने का प्रयत्न भरसक प्रयास करूंगा। करूंगी। छोटे छोटे सेंटेंस बोलो। मैं यह पद अपने देश की एकता मैं यह संदेश की भावना से ले रही हूँ, की भावना जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करती हूँ। अपना योगदान करने का जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। अब इसी शब्द को इंग्लिश में भी व्योम निखरा पढ़ेंगे और छोटे छोटे सेंटेंस में पढ़ेंगे। यस व्योम। I solemnly pledge solemnly pledge that I dedicate myself dedicate myself preserve to preserve the unity, integrity, and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge take this pledge in the spirit of in the spirit of unification of my country, unification of my country, which was made possible which was made by the vision and actions of by the Sardar Vallabh Bhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. Jai Hind. Jai Hind. So, thank you very much to all of you. Now you can keep your mic mute. And now we are coming to our regular work, that is the study of the subject science. Last time I already announced about the next assessment that will be in the month of November, and this assessment will not be descriptive assessment. This will be assessment of some parameters. We will conduct one MCQ on Google form. We will conduct one
oral test, and one more, that is optional, either PowerPoint presentation or what is next? Designing experiment. Designing experiment. So you can choose any one, either PowerPoint presentation or designing experiment. Syllabus for oral test and MCQ will be from chapter 6th. 5 chapters we already covered in written test, half yearly test. Yes? 5 or 4? Sir, five chapters. 5 chapters we already covered in half yearly examination. So from 6th onwards, chapters will be in our next assessment. November 2nd and new timetable that I will share in the class group today. It will be start and your classes will be from 11:30. All of you know about the changes in winter timing. It is all because of the winter. Every year winter timings will be different, and now it will be from 11:30 to 12:10 first period and 12:30 to 1:10 second period. And I am going to share this in your class group after today's class. When the exams start, Soumya, I already 3-4 times told, it will be start from the 2nd November. From the 2nd November, you can tell me in advance who is going to represent PowerPoint presentation, demonstrate, or this demonstration of any designing experiment. When you start making PPT, only 3 minutes, maximum 4 minutes, with explanation properly. If you are showing only slides, so definitely you will lose marks. But definitely we will keep our Google form test, that date will be fixed and that will be announced in a week before. Any doubt about next assessment? No, sir. No. So now we are going to start our new chapter, and all of you know what is our new chapter? That is soil. All of you know about the soil, and you can start writing question answers of chapter 8 also. If there is any doubt in 8 chapters, you can ask me your doubts. And our next chapter, that is soil, all of you know that. What do you mean by soil in Hindi? मिट्टी. मिट्टी. अच्छा, अपने पेरेंट्स से अगर पूछना या आपने महसूस किया हो कि जब आप छोटे थे तो मिट्टी में खेलना अच्छा लगता था? यस सर. यस सर. अच्छा, आज भी अगर स्कूल में ग्राउंड पे कहीं बहुत सारे मिट्टी जमा है तो छोटे बच्चे जरूर मिट्टी की तरफ जाते हैं? यस सर. यस सर. यस सर. अच्छा, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नो सर. क्यों नहीं जाना चाहिए? कपड़े गंदे हो सकते हैं और उसमें जो कीटाणु है वो भी आ सकते हैं और बैक्टीरिया भी. अच्छा, कपड़े गंदे वैसे नहीं होते? वैसे क्या हमारे कपड़े हमेशा साफ रहते हैं? तो गंदे होते हैं. हाँ, तो चलो, पहली बात तो कपड़े गंदे होते हैं तो कपड़े साफ भी हो जाते हैं। लेकिन दूसरी बात कि किस प्रकार की मिट्टी में हम खेल रहे हैं। मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, और शायद हवा में भी बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं, तब भी हम सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। कोशिश करें कि जब भी हम इस प्रकार खेल कर आए तो लौटकर हम अच्छे से हाथ मुंह धो लें। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर बात हो रही है सॉइल की। तो सॉइल, as you know that lots of microorganisms are there in the soil.
and soil is what we can say ki just see this picture, children playing with soil, and as you know that the most of the nutrients that we obtain from the plants or plant product, and how plants receive nutrition, from where it gets minerals and other things. Plants absorb all these things from the soil. Soil. Yes. एग्रीकल्चर, आपने कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड या खेत देखा होगा? Yes, sir. तो खेत में मिट्टी तो है, बिना मिट्टी का खेत देखा है आपने? No, sir. Okay, so yes, soil is very much essential for agriculture, and agriculture practices provide us food. Through agriculture we get clothes, through agriculture we get shelter. हमको भोजन भी खेतों से मिलता है, पहनने के कपड़े भी उसी तरीके के प्रैक्टिसेस से मिलते हैं, और जो शेल्टर है, लकड़ियों का घर बनता है, वह भी हमें उन्हीं प्रोसेस से मिलता है। एंड जब बारिश होती है, कभी आपने देखा है कि जब पहली बारिश होती है तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, महसूस करिए? यस सर। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? मिट्टी की खुशबू, सौंधी सौंधी खुशबू। यस। और आपको मालूम है, मैं नाम भूल गया उस बैक्टीरिया का, कि हमारी सॉइल के 1 ग्राम में 1 ग्राम सॉइल कंटेन millions of that bacteria, and when rain water or water takes there, when these bacteria come in contact with water, they start giving that smell, fragrance, और ये खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती है। So earth fragrance of soil, earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. तो यह खुशबू हमें रिफ्रेश कर देती है, फिर से ताजा तरोवर कर देती है। अब कहां-कहां हमें सॉइल मिलती है? गार्डन सॉइल, आपके यहाँ गार्डन है? यस सर। Yes, sir. आपके गार्डन की सॉइल, रोड साइड की सॉइल, और जहां कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन वहां की सॉइल, सभी अलग अलग तरीके की होती है। Yes, sir. Yes, sir. जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो सॉइल होती है, उसके सॉइल का पार्टिकल साइज वो डिफरेंट होता है, गार्डन सॉइल का पार्टिकल साइज डिफरेंट होता है, और रोड साइड पे जो सॉइल होती है उसका पार्टिकल साइज डिफरेंट होता है। एंड व्हेन वी ऑब्जर्व द सॉइल केयरफुली, वी फाउंड कि देयर आर सम काइंड ऑफ plants there, some small animals there, color also different, isn't it? Different areas of soil having different colors, and when we collect the sample of soil, the sample of soil, if suppose we collect sample of soil from different places like anybody of you is from Kumraj, if we collect sample of Kumraj soil, or somebody brought soil from the desert area, somebody brought soil from some other area, all these kinds of soil will be differ from each other, एक दूसरे से अलग अलग होंगे। इनके जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंसेस ऑफ सॉइल, वन काइंड ऑफ सॉइल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सॉइल, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, कि क्यों एक जगह की सॉइल दूसरी जगह की सॉइल से डिफरेंट होती है। अगर आप में से कोई कभी डेजर्ट गया है, आपने डेजर्ट देखा है, रेगिस्तान देखा है? Yes, sir.
तो रेगिस्तान की जो सॉइल है वो डिफरेंट होती है, हमारे यहाँ की सॉइल डिफरेंट होती है। अब मैं आपको एक बड़ा बहुत ही जनरल एक्टिविटी घर पे करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इजीली कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं तो सॉइल है, आपके आंगन में, आपके गार्डन में, आपके खेत में सॉइल है। यस सर। आप इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर में पानी लीजिए। यस, नॉट फिल दिस glass tumbler not up to the brim, better to fill it 3/4, थोड़ा सा खाली छोड़ दीजिए। और जो सॉइल आपने कहीं से कलेक्ट की है वो कुछ सॉइल आप उस पानी में डाल दीजिए। You can stir it with the stick or spoon, isn't it? And allow this water with soil undisturbed for some time. इसको बिना हिलाए आप रखे रहने दीजिए। And after 30 minutes, what you will found? You will find that there are some kind of layers. Have you ever seen some kind of small insects, some humus type material is floating on the surface of water? Then there is the water, then a kind of clay, then sand, then gravel. आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि उस सॉइल में जो आपने एक कांच के ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर में डाली है, उसमें कितनी सारी चीजें हैं। And because they are differ in their weight, their property is different, then they settle here and there. तब वो कोई ऊपर कोई नीचे सेटल हो जाती है। कौन सी चीज सबसे नीचे सेटल डाउन होगी? जो सबसे हैवी है, जिसका वेट ज्यादा हो। वेरी गुड। और कौन सी चीज जो ऊपर फ्लोट करेगी? जिसका वेट लाइट वेरी लाइट, हल्का वेट हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वी कैन सी। और मैंने आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर के लिए क्यों कहा है? बिकॉज यू कैन सी कि विच लेयर इज हियर, यहाँ कौन सी लेयर है, ये आपको दिखाई देगा। और आप करके देखना इस बात, इससे आपको क्या पता चलेगा कि हमारी अलग अलग टाइप की जो सॉइल, हमारी जो सॉइल है उसमें कितनी सारी चीजें होती हैं। आप जो सॉइल लेते हैं, आपने कभी नोट किया है कि जब बारिश होती है, पहली बार बारिश होती है, तो सॉइल में से कुछ छोटे छोटे कीड़े या रेप्टाइल्स बाहर निकलना शुरू कर देते हैं? यस सर। क्यों निकल आते हैं वो बाहर? सर उनके शेल्टर में पानी भर जाता है इस कारण। जैसे मान लीजिए हम लोग, Nitesh, your mic is disturbing because of some network issues. So whenever you want to say something, just say and keep it mute. तो आपने देखा है कि अगर हम हमारे घर में बैठे हैं और पानी घुस जाए तो हम क्या घर के अंदर रहेंगे या घर के बाहर चले जाएंगे? घर के बाहर चले जाएंगे। घर के बाहर। अच्छा, क्यों चले जाएंगे बाहर? क्योंकि हमें मतलब वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। Because we will not be able to breathe properly in water, and that's why small animals, reptiles, they come out on the surface of earth when rain starts. जैसे ही बारिश शुरू होती है वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि that water enter in their burrows, जो छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं, जो उनका घर होता है, वहां in the cracks and other things water entered, and when water entered they could not get breathe properly, properly breathing नहीं कर पाते। So is it clear to all? Yes sir. Okay, now Yes, sir. second very important point that we can draw out कि yes, soil is teeming with life. जो soil है वो कई चीजों का घर है, वहां पर बहुत एक लाइफ होती है।
सॉइल टीमिंग विथ लाइफ, जो मिट्टी है, जो सैंड है, जो सॉइल है, क्ले है, उसमें लाइफ होती है। आपने देखा होगा स्टील का कंटेनर जिसमें हम पानी कलेक्ट करके रखते हैं घर में, उसका टेस्ट, प्लास्टिक बॉटल के में स्टोर किए गए पानी का टेस्ट, और मिट्टी के बर्तन में जो मटका कहते हैं हम जिसे अर्दन पॉट, उसमें स्टोर किए गए पानी का टेस्ट अलग अलग होता है। यस सर। यस। क्या हो जाता है उसमें? अच्छा, क्या आपने देखा है जो तवा होता है, पैन होता है, वो भी मिट्टी के पैन मिलते हैं मार्केट में, आप में से किसी ने कभी यूज किए? यस सर। हाँ, तो कभी परचेस करिए, मेरे यहाँ है, उस पर सर बनी हमारे हुई यहाँ रोटी, भी है। वेरी गुड, उसमें बनी हुई रोटी और लोहे के तवे में बनाई गई रोटी, दोनों का टेस्ट अलग होता है। रोटी तो रोटी होती है, टेस्ट तो डिफरेंट होता है। क्या अग्रिमा होता है कि नहीं होता है? तो करेंगे, ठीक है तो अभी वेट कर पता लो। चलेगा। जब आप करेंगे तब पता चलेगा। और बचपन में तो आपने सभी ने मिट्टी का टेस्ट भी लिया है। पूछना अपनी अपनी मम्मियों से, क्या सानिका ये बहुत मिट्टी खाती थी जब छोटी थी? सभी लोग खाते थे? अच्छा, नहीं खाते? क्यों? संदेश आप घर में पूछना। पहले तो क्या है कि हमें कुछ समय, अगर गार्डन में, रोड पे नहीं तो हमारे गार्डन में, उस सॉइल सरफेस पे, कभी तो विदाउट यूजिंग एनी स्लीपर्स वी हैव टू वॉक ओवर देयर, थोड़ा पैदल चलना चाहिए उसमें। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। अच्छा, लास्ट ईयर आई थिंक और इन क्लास 5th you made some 3D shapes using clay. Yes, sir. I made cycle also. Yes beta. I made cycle and kitchen material. Oh my god, you're very intelligent. So clay modeling, अब मैंने क्या किया, मैंने कैथरीन को सैंडी सॉइल लाकर दे दी। I provide sandy soil. That sandy soil generally be found on the construction site. Can Catherine make a sphere with the help of sandy soil? No, sir. No. Sanika can make with the help of sandy soil? No, sir. No. But when I provide clay soil, Pankti, can you make any shape material with the help of clay soil? Yes, sir. Yes. Pankti is not there. पंक्ति कहीं पंक्ति में खड़ी हुई है, आजकल दिखाई नहीं देती। सर वो क्लास में तो है। क्लास में तो बेटा, हम जब हमारी रियल क्लास चलती है उस समय बहुत सारे लोग क्लास में फिजिकली रहते हैं, इधर से गायब, सभी डिसअपियर हो गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं भी जा रहा हूँ, जल्दी से वापस आओ। अनुमेगा? यस सर। कैमरा ऑन करिए बेटा सभी लोग। हाँ, नहीं तो मैं सबकी अटेंडेंस 0 कर दूंगा आज की डेट की। आज राष्ट्रीय नेशनल यूनिटी डे है, यूनिटी एकता के रूप में खड़े हुई है। सो विपुल महेश्वरी, आर यू देयर? नेवर गिव एनी रिस्पॉन्स व्हेन आई कॉल हिम बाय नेम। यस सर, है वो मीटिंग में तो है। आयन, आर यू देयर? सर मीटिंग में है। आयन, यस सर। वीडियो ऑन कर। ओपन योर कैमरा। सर वी सर ऑन। इट इज फ्रीजिंग। सर विपुल कह रहे हैं उसका माइक काम नहीं कर रहा। अच्छा, आपके पास मैसेज भेजा उसने? माय माइक इज चैट बॉक्स में भेजा। माय माइक इज नॉट वर्किंग। योर कैमरा इज वर्किंग विपुल? If your camera is working, you can open your camera. If mic is not working, no problem. Video,
Nothing is working. So, सर मैं वीडियो ऑन कर लिया. okay, good. So this is very important to understand that. अरे फिर गायब हो जाता है, आता हो जाता है. So soil, different type of soil having different qualities, different properties, and these properties of soil decide its use. All of you know about it. I told to do this activity to say different layers of soil, so you can easily do at home. What is your opinion about the pollution, soil pollution? Everybody, all of us are using polythene bags, plastics, isn't it? We are using them. Plastic and polythene bags, they pollute the soil. They pollute the soil, and a very important thing, they kill the microorganisms living in the soil. They kill and damage the organisms or life present in the soil. And that's why we should avoid using plastics and polythene. Chemical and pesticides also pollute the soil. Waste product, waste medicines, chemicals. Before throwing, we should treat them. We should not throw directly on the ground surface. And that's why, to minimize the pollution of soil, to pollute the soil, we should try to minimize the use of plastic. Now, my question, what happens when we throw, suppose Nitish market में गया, उसकी मम्मी ने बोला मार्केट जाइए. Nitish चूंकि गाड़ी चलाना भी जानता है. Yes, Nitish, do you know how to ride a bike? Yes, sir. Very good, he knows. So he started his bike and go to the halwai shop. और उसने क्या लिया मालूम? मस्त गरम गरम गुलाब जामुन. And when he purchased, he returned. तो किसमें लेकर आया आपने जो eatables in polythene? And when he brought eatables in the polythene bag, at home, he removed all the eatables from the polythene bag in a container. और बाकी का क्या किया? Then he threw the polythene bag outside. This polythene, lots of eatable items, particles are stick with the polythene. खाने के पार्टिकल उससे चिपके हुए रह गए हैं कि नहीं रह गए हैं? Yes. Yes, sir. And when we throw it outside, the cattle, especially cows and buffaloes, they don't know this polythene is not good for their health. They just eat the polythene. And this is one of the major cause behind death of cattle in our country. They consume polythene. And they consume polythene, they can't digest polythene. Can we digest polythene? No. So we can't digest polythene. Other animals also can't digest polythene. And somewhere stick. And after some time, is a danger to their life. So when we go to market, we can carry something to collect these food items. Yes. सर जब मैं 3rd 4th में था तब मैं साडा वाले घर में रहता था. अभी तो मैं जेपी में रहता हूँ. तो वहां पे एक गाय ने पॉलिथीन खा ली थी, तो मेरे पापा ने कुछ बनाया था उसको पिलाने के लिए जिससे वो ठीक हो जाती, पर तब भी वो नहीं बच पाई. तो क्या क्या बनाते हैं जिससे पॉलिथीन वो डाइजेस्ट हो जाती है? पॉलिथीन डाइजेस्ट नहीं होती बेटा. उन्होंने जो भी उसको पिलाया होगा उससे उसको वॉमिटिंग हुआ, और उस वॉमिटिंग के कारण वो पॉलिथीन बाहर आ गई होगी या आ सकती थी. ठीक है, पॉलिथीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. वो उन्होंने कुछ ऐसा लिक्विड बनाया होगा जिससे वॉमिटिंग हो जाए, और वॉमिटिंग हो जाने से जो भी पेट की जो इस प्रकार की गंदगी रहती है वो बाहर निकल जाती है. बट दिस इज वन ऑफ द कॉज. सो पर पॉलिथीन बैग तो रीयूज हो सकता है. हाँ, कितने लोग उसको रीयूज करने के लिए भेजते हैं?
क्या हमने कभी भेजा? नो हम लोग पॉलीथीन मैं- कलेक्ट, यस बेटा, सर एक्चुअली हम लोग जो जैसलमेर के स्टेशन पर थे और हम Yeah. लोग जयपुर जा रहे थे और वहां पर एक वो था, एक कुछ वेंडिंग मशीन जैसा था, उस पर लिखा हुआ था दैट पुट द प्लास्टिक बॉटल एम्प्टी वन टू रिसाइकल इट। मैंने डाल दिया, बस हो गया। very good. नहीं, but this kind of facilities is not available everywhere. So generally what we do, we use and throw it. And that throwing such plastic or carry bags, it creates problems. Not only polythene. Every week and many children every day purchase so many eatables from the market, packet food, chips, kurkure, and other such things. Yes or no? And suppose you Yes, purchase sir. a 12 rupee packet of chips, you consume chips. What about the wrapper? Throw it out. In dustbin. डस्टबिन में Yes, sir. फेंक देते हैं। बस में खा रहे हैं तो बस से बाहर खिड़की से फेंक देते हैं, ट्रेन में खा रहे नो हैं सर, बैग में रख लेते हैं। फेंक देते हैं। फिर बेटा दुनिया में इतना गार्बेज कहां से आ गया? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज, ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज। वी आर रिस्पॉन्सिबल, not individually, as a whole we all are responsible for polluting the soil, for polluting the water also, because of plastic that is non biodegradable. So we are polluting our soil. One more thing, all of you know about the pesticides, insecticides and fertilizers. Farmers use all these things. Yes or no? Yes, sir. Farmers use, and they excessive amount of fertilizers also make the soil pollute. और ये excessive quantity of fertilizers है, ये हमारे soil को pollute कर रही है। और हमको फिर क्या होता है, उसी पॉल्यूटेड सॉइल में जो प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो रहे हैं, जो वेजिटेबल्स आ रहे हैं, वही हमारे को मार्केट में मिलती हैं और वही हम कंज्यूम करते हैं। तो द वर्क वी डिड टू पॉल्यूट द सॉइल फाइनली इज कमिंग टू अस विद सम डिजीज। वही पॉल्यूशन, वही फर्टिलाइजर्स, वही हमारे बॉडी में वापस आ रहा है कि नहीं, थ्रू द eatables. Are you agree with me or not? Yes, sir. Yes, sir. So I agree. हम मार्केट से बहुत अच्छा एप्पल खरीद के ला रहे हैं, बहुत अच्छे ग्रेप्स खरीद के ला रहे हैं, उसमें कितना केमिकल्स? थ्रू द सॉइल, थ्रू द वाटर। तो ये हमारे ही नुकसान की बात है। सो हमें इन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो इनका ध्यान रखने से हम अपना ध्यान ही रखेंगे। अगर हम ये ध्यान रखें कि हमें सॉइल को पॉल्यूट नहीं करना है तो इससे हम अपना ही ध्यान रखेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस पिक्चर ऑफ लेयर ऑफ सॉइल you see layers of particles of different sizes at different places, and on the top of the layer of water you can see humus. What is humus? Humus is Sir, small particle of dead plants and animals. very good. That is the rotting dead matter present in the soil, that is called the humus. It is brownish, dark brown in color. Now one thing should be in your mind, how soil formed. आपने देखिए कि आपके सामने, घर के सामने बहुत सारी सॉइल है, वो बनती कैसे है? क्या नेक्स्ट?
मोबाइल छोड़ दो। सर मेरे पास नहीं है। हाँ, नीचे मत देखा करो, सामने देखा करो, मेरी आंखों में आंखें डाल दो। यस सर। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि मुझे वो भी दिखता है जो आप कैमरे में नहीं दिखाना चाह रहे हैं। सर जब सर मेरे बहुत पास सारे नहीं है। बहुत ज्यादा सर जो रॉक्स होते हैं ना, जब वो टूट जाते हैं ना तो सॉइल फॉर्म करते हैं। अच्छा, क्या हम एक दिन में एक बैग या हाफ केजी सॉइल बना सकते हैं? सर नहीं, नो सर। It takes times to be formed, and this Yes, whole sir. sorry, this whole process of formation of soil, it is called weathering. And what is weathering? It is breaking down of soil, breaking down of rocks into smaller particles due to action of water, running wind and running water, or changes in temperature, climatic condition. This is soil formation. So it takes years to form. It takes years of form. बड़ी सी रॉक है, हम वहां जाके छेनी हथौड़े से उसको तोड़ के पार्टिकल्स तो नहीं बना रहे, बट व्हाट इज गोइंग ऑन? आपने देखा होगा बेटा, नदी में आपको कुछ स्टोन नजर आते हैं। जब आप Yes, sir. नदी के किनारे जाते हो तो आपको छोटे छोटे स्टोन नजर आते हैं, हैविंग ए प्रॉपर शेप। यस, Yes. this is all because of how continuously they come in contact with water and gradually they turn into this shape. जब वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता है, रनिंग वाटर और इन सब के कारण जो रॉक है that break down into smaller particles, this is called soil formation. Is it clear to all? So time is over. I will send you today's evening about the new timetable that will start from 2nd of November. Yes, Anumega. सर मेरा मतलब मुझे वो टाइम टेबल के बारे में कहना था। सर आपने कहा कि हमारा क्लास 11:30 to 1:30 तक होगा, पर सर ये सर 1:10 पर सर जो हमें सर्कुलर मिला था उसे दिखाया कि 11:30 to 12:30 सॉरी सर 2:30 तक होगा। हाँ, वो बेटा कंबाइंड है ना, 9 to 12 के 3 पीरियड्स चलते हैं ना बेटा, इसलिए आपका फर्स्ट पीरियड होगा 11:30 से 40 मिनट्स का, फिर वही 20 मिनट्स का गैप होगी, फिर 40 मिनट्स का सेकंड पीरियड। ओके, शांति पाठ। शांति शांति शांति। साईराम चिल्ड्रन। Sairam sir. Sairam sir. Sairam sir.